السلام علیکم، میں منور حسین خادم الحجاج کی حیثیت سے سفر حج پہ آیا ہوا ہوں۔ میرے ساتھ میری بلڈنگ میں جو بھی حاجی صاحبان رکے ہوئے ہیں، آج میں ان لوگوں کو لگ بھگ 50 حاجیوں کو لے کر کے مکہ معظمہ کی سیر پہ نکلا تھا۔ مکہ معظمہ کے تاریخی مقامات کی زیارت پہ گیا تھا۔ آپ بھی مکہ معظمہ کی کچھ جھلکیاں اور تاریخی مقامات کی زیارت میرے ساتھ کریں۔ دیکھیں یہاں پہ مکہ معظمہ اور مکہ معظمہ سے جڑے تاریخی مقامات۔ کے اوپر حملہ آور ہوگا، حملہ کرے گا، کیا اس کو ماننے کے لیے تم تیار ہیں؟ تو سب نے عرض کی تھی کہ لبیک، جو آپ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں سے پوچھا کہ مکہ والوں، تم نے تو دیکھا نہیں ہے، میری زبان سے سنا ہے، یہ کیسے مان رہے ہو؟ تو سب نے عرض کی کہ ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، وہ یہ بھی آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو کہا کہ مکہ والوں، یہ جانتے ہو کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا اور آپ نے میری زبان سے جب بھی سنا سچ ہی سنا، اور یہ بھی جان لو کہ یہ بھی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اللہ کے اوپر کسی کی بادشاہی نہیں ہے، ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے۔ میرے محبوب، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب غم نہیں کھانا، اللہ آپ کے اندر سامنے کلوک ٹاور آپ دیکھ سکتے ہیں، نکلتے ہیں اور سین کے اندر سے مٹھی بھر مٹی اٹھاتے ہیں اور دشمن دین کے سامنے پھینکتے ہیں۔ اللہ پاک دشمن دین کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہے اور ان کی اونچی اونچی پہاڑیاں بغل میں، آقا سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے دشمن دین کے بیچ سے، دشمن دین کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور چلتے چلتے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں۔ کس کے گھر پہنچتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے باہر دروازے کے اوپر جا کے دستک دیتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اتنی جلدی سے گیٹ کو کھولتے ہیں، ڈور کو اوپن کرتے ہیں، جیسے کہ کسی کی انتظار میں کھڑے تھے، اور اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ابو بکر صدیق، رات تو آدھے سے زیادہ جا چکی ہے، رات کا تو بہت سارا حصہ جا چکا ہے، ابھی تک آپ سوئے نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو قربان ہو جائے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت پر، حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا قبل 1 ماہ پہلے آپ نے اعلان فرمایا تھا، کتنے ماہ؟ 1 ماہ، نبوت کا وزن اٹھا کر اس پہاڑ ہائٹ بلندی تک لے کے گئے۔ ابھی آپ کی گاڑی گھومنے والی ہے، یو ٹرن کرے گی، اور جیسے یو ٹرن کرے گی تو جس رستے پر ابھی ہم پہنچیں گے اس رستے کا نام ہے طریق ہجرہ۔ طریق کہتے ہیں عربی میں رستے کو، ہجرہ ہجرت والا رستہ، اس رستے کا نام بھی اسی لیے رکھا گیا، اور ابھی ہم جبل سور کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، یہ رستہ ہے طریق ہجرہ۔ اور حضرات جبل سور کی ہائٹ بلندی جو ہے وہ 5413 فٹ ہے۔ کتنی ہائٹ ہے؟ 5413 فٹ اس پہاڑ کی ہائٹ بلندی ہے، اور اس پہاڑ کے نیچے سے حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر پاؤں کی آگے والی انگلیوں کے بل، پپو کے بل، پنجوں کے بل اس ہائٹ بلندی تک لے کے جاتے ہیں۔ اور سبھی حاجی صاحبان جو زیارت کے لیے نکلے ہیں، ان کے ساتھ گائیڈ ہے جو کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ بولیں، آ گئے سبھی؟ آگے آ جائیں، کیا ہو گیا؟
गारे सोर यानी जिसे कहते हैं हिंदी में रुख इस तरफ कर लें, मुँह रुख इस साइड पे कर लें। अभी हम जबल सोर पहाड़ के नीचे खड़े हैं, यानी कि अभी हम यानी कि जिस जगह का पहाड़ को ये काट के ना पीछे ये घर वगैरह बनाए गए, और जिस साइड पे आप और हम सब खड़े हैं इस पहाड़ की दूसरी साइड पे जो जबल सोर पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर देखें, टॉप के ऊपर एक मोटा पत्थर नज़र आ रहा है, लोग भी देख रहे हैं, देखें अगर छोटे छोटे नज़र आएंगे ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। इस पहाड़ के नीचे से जिस साइड पे आप और हम सब खड़े हैं इस पहाड़ की दूसरी साइड से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अल्लाह के नबी को अपने कंधों पे उठाकर पाँव की आगे वाली उंगलियों के बल, पप्पू के बल, पंजों के बल इस पहाड़ हाइट बुलंदी तक लेके जाते हैं, पूरा कदम ज़मीन पे नहीं रखते हैं। और ये वो पहाड़ है, इस पहाड़ की हाइट मैंने बताई थी 5413 फुट इस पहाड़ की हाइट है। कितनी हाइट है? 5413 फुट इस पहाड़ की हाइट है। और दाहिने तरफ जो पहाड़ है ये राइट साइड पर आएगा सीधे हाथ पे, वो जबल सोर है। जबल सोर ये पैदल चलने वाला रास्ता है, अंदर से पैदल लोग जो जाते हैं। जबल सोर के पास काफ़ी भीड़ भाड़। सीधे हाथ पे देखें, ये देखें जबल सोर, लोग ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। 5413 फुट जबल सोर ऊंची पहाड़ी जो दिखाई पड़ रही है। अबू बकर सिद्दीक़ की गोद में देखें, अपना सर मक्का रख के शहर। आराम फरमाते हैं। पहाड़ियों के बीच घिरा और जब आराम फरमाते मक्का हैं शहर। तो हजरत उस गार के अंदर एक सांप था, उस गार के अंदर एक सांप था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का। मुख्तलिफ रवायात है इसके ऊपर मुख्तलिफ रवायात मौजूद है। या सिद्दीक़ के जिस्म में जहर फैला और सब्र का पैमाना टूटा, आंसू छलक पड़े। जब आंसू छलके तो नीचे वद्दुहा का चेहरा था, वल्लैल की जुल्फें थी, अलम नशरक का सीना था। अल्लाह के नबी के चेहरे पर आंसू गिरे, अल्लाह के नबी बेदार हुए। पूछा अबू बकर सिद्दीक़, किसकी मोहब्बत ने तुझे रुला दिया? क्या बड़े बाप की याद आ रही है? क्या बीवी और बच्चों की याद सता रही है? किसकी मोहब्बत ने तुझे रुला दिया? तो कुर्बान हो जाए हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह के नबी को अर्ज करते हैं कि आका, जो आपका चेहरा देखे, जो चेहरा मुस्तफ़ा देखे, उसको किसी और की याद आई हो नहीं सकता। मुझे एक जंगली जानवर ने काट लिया। अल्लाह के नबी कहते हैं अबू बकर पाँव को साइड पे करें। जब पाँव को साइड पे किया गया, नीचे से एक सांप बाहर आता है, अल्लाह के नबी की बारगाह में आके सलाम पेश करता है। अल्लाह के नबी हाथ का इशारा करते हैं, सांप हसरत भरी नगाहों से देखता हुआ वापस अपने सराख में चला जाता है। अल्लाह के नबी अपना लहाबेदान थूक मुबारक निकालते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के पाँव की एड़ी पर लगाते हैं जिस जगह से सांप ने काटा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं हुजूर का लवाब लगने की देर थी, अल्लाह पाक ने उसी टाइम मुझे शिफा अता फरमा दी। दर्द की आगे वाली हमारी ज़ियारत आएगी इंशाअल्लाह जबले नूर गारे हिरा। कौन सी ज़ियारत? जबले नूर गारे हिरा, जिस पहाड़ के ऊपर कुरान की पहली 5 आयात का नुज़ूल हुआ था। पहली आयात थी इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक माअलम यअलम तक 5 आयात का नुज़ूल हुआ था। इसी पहाड़ के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन 3 दिन का खाना लेके जाते थे। 10-10 दिन 15-15 दिन 2 दिन के खाने पर गुजारा करते थे। लेकिन जब दिन ज्यादा गुजर जाते थे फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा मक्का से खाना पका के पैदल इस पहाड़ के ऊपर लेके आया करती थी। थोड़ी देर में इंशाल्लाह जबले नूर गारे हिरा देखेंगे। और जबले नूर के ऊपर यानी 2 दिन का खाना जब लेके जाते थे तो उम्मुल मोमिनीन खाना पका के मक्का से जिस जगह से लेके आया करती थी वहां से तकरीबन जबले नूर 5 किलोमीटर यानी पैदल सफर करके आया करती थी। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम जबले नूर गारे हिरा की जियारत करेंगे इंशाल्लाह।
जबले नूर गारे हिरा। हम खुद भी एक पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और मुकम्मल ये ज़ियारत नज़र आ रही है। ये जबले नूर गारे हिरा है। जबले नूर गारे हिरा। हम खुद भी एक पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और मुकम्मल ये ज़ियारत नज़र आ रही है। ये जबले नूर गारे हिरा है। क्लास का लेबर क्लास का लोग करे ना कितना हुआ आपको सब सकता कोई भी होटल में ठहरे थे तो उनको तो पूछे तनख्वाह कितना है कब्रिस्तान जिसके अंदर उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा आराम फरमा रहे हैं। कसीर तादाद में औलियाए कराम बुजुर्गान दीन दुरूद पाक सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ लें ताकि अपनी जान की बारगाह में तोहफा पेश कर सकें। आपकी राइट साइड सीधे हाथ पे ब्लैक कलर की ग्रिल लगी हुई है। जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान सीधे हाथ पे देखिए, सीधे हाथ पे जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान। सलाम पेश कर लें। अस्सलाम अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलाम अलैकुम उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आगे वाली हमारी ज़ियारत मस्जिद जिन आ रही है, जिस जगह पे जिन्नों ने इस्लाम कबूल किया था हुजूर की दावत पर। सीधे हाथ पे राइट साइड पर देखें मस्जिद जिन, ये करीब से देखें मस्जिद जिन। आगे वाली अब आपकी ज़ियारत आ रही है मस्जिद फतह। जब मक्का फतह हुआ तो इस्लाम का पहला परचम झंडा यहाँ पर लहराया गया था। सीधे हाथ पे फ्रंट वाली साइड पर कर्नल के ऊपर देखें मस्जिद फतह। ये हरम से 5 मिनट 7 मिनट में पैदल आके ज़ियारत कर सकते हैं। असर के बाद सब ओपन होती हैं, सफा और मरवा से बाहर निकलेंगे तो ये सीधे हाथ पे मस्जिद फतह है, देख लें राइट साइड पर। और आपकी लेफ्ट साइड पर उल्टे हाथ पे देखिए मस्जिद शजर, दोनों आमने सामने है। ये मस्जिद है मस्जिद शजर। शजर कहते हैं दरख्त को। मक्के का काफिर मुशरिक को हुजूर की बारगाह में आया और आके कहा कि सब नबियों ने मौइज़े दिखाए, आप भी नबी होने का दावा करते हैं, आप भी कोई मौइज़ा दिखाएं। अल्लाह के नबी ने पूछा बताओ क्या देखना चाहते हो। उसने कहा सामने जो दरख्त है ये चल के आपके पास आ जाए। हुजूर ने उस काफिर मुशरिक को कहा कि तू जाके इस दरख्त को मेरा नाम और मेरा पैगाम सुना दे। ज़बान काफिर की थी। राइट साइड पर जन्नतुल मुअल्ला देख लें, सीधे हाथ पे नीचे देखें, ज़बान काफिर की थी। पैगाम यहाँ भाई रोड है, ये हिंद पाकिस्तान नहीं है कि रोक लें गाड़ी। ज़बान काफिर की थी
और हुक्म और पैगाम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हदीस के अल्फाज हैं कि दरख्त ने हुजूर का नाम और पैगाम सुना, दरख्त दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, जमीन का जिगर चीरते हुए, जिस्म और जड़ों को घसीटते हुए हुजूर की बारगाह में आके सलाम पेश करता है। अल्लाह के नबी हाथ का इशारा करते हैं तो दरख्त चलता हुआ अपनी जगह पर उसी हालत में खड़ा हो जाता है। इस मोइज़ा को देखकर मक्के के काफिर मुशरिक लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और कहा यह खुला जादू है। ये आज की हमारी आखिरी ज़ियारत थी जो मुकम्मल हुई है। अभी हम इंशाल्लाह आपके होटल बिल्डिंग की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। कैसी रही ज़ियारतें, समझ आई है ना सबको कि नहीं अच्छी रही हैं? चले ज़रूर दुआओं में याद रखना। 3308 कारी मोहम्मद इमरान। कुलोक टावर मस्जिद हरम के करीब, और इस तरह से हम लोगों का मक्का मुअज्जमा के तारीख़ी मकामात का ज़ियारत मुकम्मल होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जी। अपने होटल के हाजी साहबान ज़ियारत करके लौटते हुए मैं इन लोगों को लेकर के आज ज़ियारत पे निकला था। इन लोगों ने मक्का मुअज्जमा के लगभग जितने भी तारीख़ी मकामात हैं सभी जगह का इन लोगों ने ज़ियारत कर लिया माशाअल्लाह। देखें अपनी बिल्डिंग के हाजी साहबान एक एक करके गाड़ी से उतरते हुए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है इंशाअल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, क्या ठीक है। ये अजीज़िया का इलाका है। अजीज़िया में बिल्डिंग नंबर 46 में हम सब रुके हुए हैं। बिल्डिंग नंबर 46 के सभी हाजी साहबान ज़ियारत करके लौटते हुए। पहनिए ना। नहीं ग्रुप का काम हो गया है हमारा बच्चा है ना। ठीक है। क्या हुआ और दीजिएगा क्या पैसा? आप ज़्यादा दे दिए थे क्या? देखिए अभी यही चीज़ बोला जा रहा था तभी से ना, उनको देना था पैसा। देख रहे हैं हम तो अभी देखते हैं जो 50 था वही ना बोल रहे थे। हम उससे ले लेंगे। 50 दिए थे वो हमको 30 घुमा दिए। हम दे देते हैं उसको जाकर। दे दिए अभी है जाइए दे दिए इसीलिए तो क्या। ठीक है, जाइए शुक्रिया। सभी हाजी साहबान नीचे उतर चुके हैं, एक दो बाकी हैं। ठीक है। अपने बिल्डिंग के कमरों के लिए जाते हुए इन लोगों का ज़ियारत, इनका कहना है कि काफ़ी अच्छा रहा।